Statistics Part 3 Bar Graph. To students, we have completed this part, this all sums. Now we are going to start about subdivided bar graph. Now for doing bar graph, last year you have studied one single graph and joint bar graph. This year we are going to study subdivided bar graph. Subdivided means only one bar graph will be there and we will divide that bar graph. First, for that we should know what is a graph. For that we should know what is a graph book. So this is known as a graph paper. All of you have got the graph book with your set of notebooks. So take out your graph books. Now whenever you have a graph, when you draw graph, always draw the two axes. These are known as the axes. This line, vertical line, and the horizontal line. Okay, this horizontal line is known as the x axis and this vertical line is known as the y axis. Remember, anytime whenever you draw a graph, this will be the x axis and this will be the y axis. Whenever you draw a graph, always leave one square from both the sides and then draw the line. This point where these two axes meet is known as the origin. Okay, this is known as the origin. Henceforward further classes, when you study, you will come to know what we have to take at the origin. But for this year, you should only know that this is known as the origin, this is the x axis and this is the y axis. Now each square which you see here, this part is 1 centimeter, this is 1 centimeter, this is 1 centimeter, this is 1 centimeter, and in between these centimeters also you can see small lines. So these lines are of 1 millimeter. So whenever you draw a graph, you should have some scale. Scale means what you are going to take. Suppose we have to take number of students, so the scale will be 1 centimeter maybe 10 students, or 2 centimeter maybe 10 students. That depends upon how much size graph you want, or what. Sometimes in the sum also they give you the scale, like in this practice set 11.2, when we draw the graphs, you will see that the scale is already given for each sum, what scale you have to take. So as we do the graph, you will come to know. Now let us see what is subdivided bar graph. Okay, as in a joint bar graph, we can compare. Now these graphs are drawn for comparison, to compare two things at the same time. Okay, so joint bar graph means what you drew, it was one graph was this way and the next graph was beside it, so you could compare. But in this subdivided bar graph, in the same bar, we are dividing the bar into two parts. Upper part, white part is different and blue part is different. It shows two different things, this blue part and white part. Okay, and all the white parts show the same thing, all the blue parts show the same thing, but they both are different from each other. Now why do we do that? Because we want to compare, we want to find out. हमको कंपेयर करना है, फाइंड आउट करना है, कुछ सिमिलैरिटीज़, कुछ डिफरेंसेस, कुछ ज़्यादा है, कम है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. दैट्स वाई वी डू दिस subdivided bar graph. We will see the steps for drawing a subdivided bar graph, how to draw that. Now see here what they have given. They gave us some information. Now this is the name of the town. These three are the names of the town: Ithlapur, Dhanodi and Karmabad. These are the three towns. Now male laborers, male workers in that town. In Ithlapur there are 180 male workers. In Dhanodi there are 80 male workers, and in Karmabad there are 100 male workers. Female laborers or female workers, Ithlapur has 120, Dhanodi has 40 and Karmabad has 60. Now what is the total over here? 300. So total laborers is 300. Here what will be the total? This will be 120. Here what will be the total? It will be 160. First prepare a table of the given data as shown above. First we have to prepare a table. Now what we will do next? Draw a x axis and y axis on the graph paper, as I showed you on the graph paper. Here see the graph paper, here also they have left 1 centimeter from both the sides. This is the x axis and this is the y axis. So we draw two lines
these are lines with arrows. Always they will be arrows because they are lines. Okay. Write the names of towns on x-axis. So x-axis, this is the first town, that is Ithlapur, Dhanodi and Karmabad. Now the gap between the origin, first line, and the town, now here there is 1 centimeter gap. Same gap should be there between each town. One town you are writing marking over here, and second town immediately here, and third town over here will not do. The gap between each should remain same, and here also this gap. So this one gap, second gap, third gap, or how many quantities are there, that much. Each gap should be of the same size. It should be of 1 centimeter or 2 centimeter or whatever you want to take, it will be same. Now here they have taken a gap of 1 centimeter, and then we have written here Ithlapur, Dhanodi and Karmabad. Now what we know, in Ithlapur what is the number of male workers are 180. So now here what they have given us, show the number of laborers on y-axis with the scale 1 centimeter is 40 laborers. Now see here, the number of laborers, maximum number of laborers is 300. I don't have 300 lines over here to show one laborer. So what they have done, this 1 centimeter is 40. Then next will be how much? 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320. Till 320 we have got the on this. So this is known as the scale. What is a scale? Scale means on the y-axis how much you are going to take. Scale 1 centimeter is 40. 1 centimeter is equal to 40. So here it is 40, 80. So the gap should be of 40 only. Here if I take 40, next will not be 60 or 100. It will be a gap of 40, 40 in each. When I tell the scale is 40, it means gap will be of 40 only, not less or not more. Now if this is 40, what is the number of male laborers in Ithlapur? It is 180. So now 40, 80, 120, 160, and this is 200. So I want 180. So it will be in between of 160 and 200. You should know that how much lines to take in between. Now between 160 and 200 there are how many lines? 10 lines are there here. So I want 180, that is exactly midway between 160 and 200. So I count 5 lines, and this will be the number of male laborers. We have marked it with blue color. Next, female laborers are 120. Now after 160 we have to take 120. Okay, that's why first what we should do, we should mark what are the total laborers, 300. So first we will mark for 300 here. Out of that 180 are male laborers, so remaining are the female. For the second also, now what are the total laborers? 120. So let us mark 120 first. 120 is marked. Now male laborers are 80. So 80 is marked, and this is the female laborers. Same way for the third, 160 is the total. First mark this 160, draw this rectangle, okay, and then you will mark the number of male laborers. So in a graph paper, everything should be done in pencil. You will not use pen at all. And on the graph paper on the right side you should draw this, write this scale. It should be written because scale for each graph will be different. It will not be same for two graphs. Okay. So scale on y-axis 1 centimeter is 40 laborers. If we do the other sum, it might be something different. And we should also write down what you have shown with white and what you have shown with blue, because if we see the graph without this, we will not know what is blue and what is white. So I have to write that white color shows the female laborers and blue color shows the male laborers. So when a person sees this graph, immediately what he will come to know, that the number of male laborers is more in Ithlabad. Number of female laborers is more in which town? That is also in Ithlabad. Then less number of female laborers are in the town of Dhanodi. So that things we come to know when we see a graph. Let us read now. Total number of laborers in the town Ithlapur is 300. Show it by a single bar. So first we should show the total number. Show the number of male laborers by a part of the bar by some mark. Some mark. You should not give any color. You can just draw
lines, or you can make it dark, whatever, whichever things you want to do, you can show it the difference in the two graphs. Remaining part will represent a female laborer. Show this part by another mark. Similarly, draw the subdivided bars for towns Dhanodi and Karmabad. Following the above steps, the given information is shown by the subdivided bar diagram in the adjacent figure. Observe it. Okay, here it is there. Now observe. Now sometimes we get a some that bar graph is given to us. We have to observe and write the answers. Now we will do that. Observe the following graph and answer the questions. See, now what is this graph about? It is savings. Savings means keeping the money in some bank. बचत करना, ओके, सेव करना पैसे. सो इन रुपीज़ किसने सेव किए पैसे? ये सम लेडीज, सी, सविता, सरोज, वर्षा, मेघा, वैशाली. These women, these ladies have saved some money. Now see the gap. How many women are there? 5. So here there is this gap, 1 centimeter gap between each, and as I told you, we have to take the same gap. Then Savita, how much total saving is how much? See, now savings in April. Now what is we are comparing? How much they have saved in April and how much they have saved in March. What is the total savings of Savita? 1000. Total savings of Saroj? 800. Total savings of Varsha? 600. Total savings of Megha? See, between 400 and 600. So it is 500. Total savings of Vaishali? 800. What they have taken the scale? On y-axis 1 centimeter is rupees 200. So here see 200. Then this will be what? 400. So if this is 200, if the scale is 200, there should be a difference of 200 in each. As in the earlier map we have seen, it was 40, so there was a difference of 40. Here it is 200. So the scales change according to our numbers which we have in the each graph. यहाँ पे 200 का स्केल है, तो हमने यहाँ पे 200 लिया, फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 400, फिर 600, 800, 1000, और अगर आगे भी चाहिए तो 1400, 1800. ये ग्राफ में हमारा डिफरेंस था 40 का. सो दिस वी हैव ड्रॉन. यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, फिर 5 लेडीज़ के नेम्स लिखे, विमेन, सेविंग्स इन रुपीज़. ये पूरा ठीक से ग्राफ में ड्रॉ होना चाहिए. सी, ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है उसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ ऑल्सो इफ़ यू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स प्रॉपरली. तो ग्राफ में पहले क्या पेंसिल यूज़ करना है, देन प्रॉपर गैप रखने हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे स्केल प्रॉपर रखना है और वो लिखना है क्या स्केल है वो. और जो सब डिवाइडेड ग्राफ बना रहे हो तो उसमें कौन सा मार्किंग कौन से ग्राफ के लिए वो आपको बराबर से लिखना है. और यहाँ पे क्या ले रहे हैं आप? सो यहाँ पे क्या है? ये विमेन और उनके ये नेम्स है. यहाँ पे क्या है? सेविंग्स है इन रुपीज़. ये आपको पूरा लिखना है. ये लिखने के बाद ग्राफ कभी भी रॉन्ग नहीं होता. एंड ऑलवेज डोंट रब ऑन द ग्राफ. इरेज़र यूज़ मत करना. ठीक से पहले सोच समझ के ही ग्राफ करो बिकॉज रबिंग ग्राफ पेपर जो होता है इट इज़ वेरी लाइट. उसके ऊपर इरेज़र यूज़ करोगे तो पूरा ग्रीन कलर का भी वो भी चला जाते हैं लाइंस, और यह ग्राफ विल बी वेरी डर्टी एंड अनटाइडी. देन यू विल लूज़ योर मार्क्स. नाउ स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ. ये कौन से टाइप का ग्राफ है? इट इज़ द सब डिवाइडेड बार ग्राफ. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? द आंसर विल बी subdivided bar graph. How much is the savings of Vaishali in the month of April? वैशाली किधर है? अभी मंथ ऑफ अप्रैल में सेविंग्स ब्लू कलर से दिखा है, तो वैशाली के सेविंग्स कितने अप्रैल में? रुपीज़ 600. How much is the total of savings of Saroj इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल? सरोज के टोटल सेविंग्स कितने हैं मार्च और अप्रैल मिलके? ये सरोज है, इसके अभी ये अप्रैल के सेविंग्स है, ये मार्च के. टोटल कितने हैं उसके सेविंग्स? रुपीज़ 800. हाउ मच मोर इज़ द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा? सी, व्हेनेवर क्वेश्चन है तो उसका पहले मतलब समझना है. अभी क्या पूछा यहाँ पे? हाउ मच मोर, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है. कितने मोर है, कितने ज़्यादा है सेविंग्स सविता के
मेघा से। तो हमको दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। मेघा के सेविंग्स कितने हैं पहले मालूम होने चाहिए, और सविता के भी। तो मेघा के सेविंग्स कितने हैं देखो, इट इज़ बिटवीन 400 एंड 500, तो ये है 400 एंड 600, तो ये है 500। तो मेघा के सेविंग्स कितने हैं 500, और सविता के सेविंग्स कितने हैं देखो 1000 है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 1000 माइनस 500, तो डिफरेंस कितना है ₹500 का डिफरेंस है ना। 1000 में से 500 गए तो 500 है। हु सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम, हाईएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा। अप्रैल के महीने में सबसे कम सेविंग किसकी है, देखो अप्रैल का महीने के कौन से हैं, ब्लू कलर के। तो ब्लू कलर में सबसे कम सेविंग किसका है, मेघा। तो किसका सेविंग सबसे कम है, मेघाज। सो दिस टाइप, दिस वे, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ग्राफ। ना भी सेकेंड जो है ये वाला ग्राफ, ये हमको ड्रॉ करना है। ओके, सो वी विल डू इट ऑन द ग्राफ पेपर। I have written the sum over here. The number of boys and girls in standard 5th to 8 in a ZP school is given in the table. Draw a divided bar graph to show the data. अभी ये पहले टेबल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। I have not drawn the table. पहले क्या है यहाँ पे, that it's table you can draw with pen. See, whenever you are doing the graph, ये जो ग्राफ बुक है स्मॉल, मोस्टली यू टेक द बिगर बुक। अगर तुम्हारे नोटबुक्स के साथ शायद बिग बुक ही मिला है, जिनको बिग बुक मिला है वो यही करे। स्मॉल बुक खरीदने वाले हैं तो ये 20 रुपीज़ का आता है दिस बुक, सो इट इज़ बिग पेज, सो इट इज़ बेटर। ये पेज है, यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ आएगा तो यहाँ पे तुम्हारा सम आना चाहिए। ओके, ये सम देख के फिर तुरंत ग्राफ देख सकते। यहाँ पे सम और यहाँ पे ग्राफ ऐसे मत करना, जो पेज के ग्राफ के सामने वाले पेज पे ही अपना सम आना चाहिए। सो स्टैंडर्ड है फर्स्ट, 5th, 6th, 7th, 8th, ओके। देन बॉयज़, गर्ल्स, यहाँ पे 34, 17, 26, 14, 21, 14, 25, 20। फर्स्ट वी विल डू द टोटल, क्योंकि एज वी सॉ हमको हर एक इसमें टोटल रहेगा तो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ वेरी इजीली। सो दिस विल बी हाउ मच, 51, 40, 35 एंड 45। वाई वी नीड टू हैव द टोटल, तो हमारा स्केल क्या लेना है वो हमको समझ में आता है, दैट्स वाई। नाउ आई हैव ड्रॉन द x-axis and the y-axis, okay, and here what I will write, what it is, standards, standard है ना, so here it will be standard। कितने स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, 5th, 6th, 7th, 8th। तो मैंने 5th स्टैंडर्ड मुझे यहाँ पे लेना है 5th। मैंने कितने लाइन छोड़े हैं, ये एक पूरा और एक पूरा, 2 छोड़ा है। तो ये यहाँ पे फिर मुझे अभी 2 छोड़ के यहाँ पे कितना आएगा, 6th। सी नाउ 5th, व्हेनेवर मुझे बार ग्राफ करना है तो मैं ये जो लाइन है बीच में वाली, ये मेरी 5th की लाइन है, पर मैं बार ग्राफ है तो बार ग्राफ थोड़ा ये साइड पे और थोड़ा ये साइड पे आता है ना। तो मेरा बार ग्राफ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ की 2 लाइन्स और यहाँ की 2 लाइन्स करके करूँगी। वैसे ही 6th यहाँ पे है ये लाइन, तो यहाँ के 2 लाइन्स और यहाँ के 2 लाइन्स करके मैं ग्राफ बनाऊँगी। अभी 7th कहाँ पे आएगा, लीव दिस कंप्लीट, तो 7th इधर आएगा, फिर ये दोनों छोड़ के यहाँ पे 8। सी, ये आप जब बनाओगे तो आप 3-3 भी छोड़ के बना सकते हो। मैंने अभी 2-2 लिया है, सो आई एम डूइंग विथ 2, बट हमारे पास जगह है इधर तो आप 3-3 छोड़ के भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। मेन इम्पॉर्टेंस इज अबाउट वाई एक्सिस। अभी हमको मैक्सिमम कहाँ तक लेना है, नंबर्स सबसे ज़्यादा नंबर किस में है, 51। तो हमारा ये स्केल क्या आएगा, अगर मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 नहीं ले सकती ना, 1 2 3 51 तक नहीं जाएगा, तो मैं क्या ले सकती हूँ यहाँ पे 10। ओके, आई कैन टेक दिस एज 10 स्टूडेंट्स, फिर ये 20, 30, 40,
50, लेकिन ये फिर छोटा सा ग्राफ आ जाएगा मेरा। सो आई विल नॉट टेक दिस, आई विल टेक अ बिगर, मैं इसका डबल लेती हूँ। आई विल इरेज दिस। दैट्स वाई जब हम ग्राफ बनाते हैं तो पहले हमको बराबर से सोचना है कि हमको क्या स्केल लेना है। अभी मैंने तो स्केल ले लिया, बट एज इट इज़ ओनली अ प्रैक्टिस, मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं इसको रब करके वापस कर सकती हूँ। बट इफ़ इट इज़ एन एग्ज़ाम है या कुछ है ऐसे, तो आप रब करके करोगे तो आपका जो यहाँ का ग्रीन लाइन से वो भी चले जाते हैं। सी इफ़ यू इरेज, क्लीन इरेज नहीं होता है, ये ऐसे थोड़ा सा दिखता है। सो ऑलवेज बी वेरी पर्टिकुलर कि आप क्या स्केल ले रहे हो। और ओके, तो अभी ये बहुत छोटा सा होता है। आई वॉन्ट अ बिग ग्राफ, है ना। सो मैं क्या ले सकती हूँ, मैं 5 ले सकती हूँ, या फिर मैं इफ़ आई टेक दिस एज 5, तो ये हो जाएगा फिर 10, 5 का गैप रख सकती हूँ मैं। ये होगा 15, ये होगा 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 51 है मेरा, तो 55 तक लिया। और अभी स्केल कैसे लिखूंगी मैं, 1 सेंटीमीटर। अभी ये 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर मीन्स कितने स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स है ना, दिस आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, स्टूडेंट्स। ये क्या है, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स है ये हमको दिखाना है। अभी 1 सेंटीमीटर कितना है, 5 स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज स्टूडेंट्स से। इट कैन बी एप्पल्स, इट कैन बी, अब कुछ भी हो सकता है, ट्रीज हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स से। तो यहाँ पे मुझे स्केल लिखना है। आई हैव टू राइट हियर स्केल, ऐसे करके लिखना है। ये भी पेंसिल से ही लिखना होता है। स्केल ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। अभी मुझे बॉयज़ और गर्ल्स है ना अलग अलग दिखाने, तो बॉयज़ के लिए मैं क्या दिखाऊंगी, मैं एक स्क्वायर के अंदर पूरा ऐसी ऐसी लाइंस बताऊंगी, तो ये हो गए बॉयज़। और गर्ल्स के लिए मैं क्या रखूँगी, आई कीप इट ब्लैंक, ऐसे ही ब्लैंक रखूँगी। ये हमारा मेन प्रिपरेशन हो गया। ग्राफ का क्या प्रिपरेशन होता है, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है वो लिखना, और बराबर इक्वल गैप छोड़ के वो लिखना है यहाँ पे। देन वाई एक्सिस के लिए स्केल ट्राई करना कि क्या स्केल ले सकते हैं, और वो स्केल बराबर लिया है कि नहीं। देखो 5 के बाद इधर 10 ही आएगा, 5 के बाद 20 नहीं आएगा, 5 बिकॉज 5 का गैप है तो हर एक में 5 का ही गैप होगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट्स। देन थर्ड पार्ट इज़ टू राइट द स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज़ 5 स्टूडेंट्स। बॉयज़ के लिए मैं कौन से मार्किंग करने वाली हूँ, और गर्ल्स के लिए मैं कौन सा मार्क, दोनों के लिए मार्किंग कर सकते हैं, पर दोनों की मार्किंग्स अलग अलग होनी चाहिए, रिमेंबर दैट। नाउ फॉर लेट अस सी द डेटा। हमारा जो डेटा दिया है वो अभी हम देखेंगे। अभी 5th स्टैंडर्ड में टोटल कितने, पहले हम टोटल मार्क करके लेंगे। जैसे पहले हमने देखा था, फर्स्ट वी विल मार्क द टोटल, यहाँ पे 51 है। नाउ लेट अस सी हमारा 5th स्टैंडर्ड में 50 कहाँ पे है, 50 इज़ ईयर। अभी 51 करना है मुझे। अभी ये 5 है, 10 लाइंस कितने हैं इसके बीच में, 10, और नंबर्स कितने हैं बीच में, 50 से लेके 55 तक 5 नंबर्स, मतलब 2 लाइन हैं वो एक नंबर के लिए। तो मुझे 51 के लिए कितनी लाइंस लेनी पड़ेंगी, 1 और 2। तो मेरा 51 कहाँ पे आएगा, ये जो मेन है, आई होप यू कैन सी, ये 50 है। अभी ये 50 है तो मेरा 55 इधर है ना, तो 2 लाइंस की एक नंबर है इधर, 51, फिर ये 52, 53, 54 और 55। तो 2 लाइन के बाद मेरा ये 51 है। और मुझे कहाँ तक लेना है, साइड में, यहाँ पे 2 लाइन और यहाँ पे 2 लाइन, दोनों 2 लाइन ही लेना है। और स्केल यूज़ करके मुझे ये बार ड्रॉ करना है, फिर बराबर से 2 लाइन का ही लेना है आपको, ज़्यादा चौड़ा नहीं लेना है, थिन ही लेना। ठीक, ये यहाँ पे हो गया। आई होप यू कैन सी। आई कैनॉट यूज़ स्केच पेन ऑन ग्राफ, तो मुझे पेंसिल ही यूज़ करनी पड़ती है। देखो यहाँ पे भी मैंने 1 2, यहाँ पे भी 2 लाइन छोड़ के ऐसे पूरा ये बार बना दिया है। तो टोटल मेरा यहाँ पे है कितना,
51। अभी उसमें से बॉयज़ कितने हैं 34, तो अभी मुझे 34 ढूंढना है। 30 किधर है मेरा, ये है, देन 34। वैसे अभी हमने देखा कि एक नंबर मुझे दो लाइंस का है, तो दिस इज़ 30 के बाद ये होगा 31, 32, 33 और 34। तो 34 पे मुझे क्या करना है, एक डैश डालना है क्योंकि ये 34। अभी मुझे ये बॉयज़ है ना 34, तो बॉयज़ का मुझे मार्किंग कैसे करना है, लाइंस ड्रॉ करके। तो मैं बॉयज़ के लिए फिर ऐसे मार्किंग करूँगी। ओके, और ऊपर का क्या हो गया, अभी ये गर्ल्स का हो गया, ये बॉयज़ का है, ये गर्ल्स का है। गर्ल्स कितने हैं मेरे 17, तो यहाँ से ये 1 है, फिर ये 5, 5, 10, ये हो गया 15, एक 16 और ये एक 17। तो गर्ल्स कितने हो गए मेरे 17 गर्ल्स हो गए। अभी सेम वे मैं आगे का करूँगी। नेक्स्ट पार्ट इज स्टैंडर्ड 6। अभी 6 में टोटल कितने हैं 40, तो टोटल 40 है 6 में। मेरा 40 कहाँ पे है, यहाँ पे है। सी अभी मुझे मार्क करने की जरूरत, डायरेक्ट ही है 40। यहाँ के 2 लाइंस और यहाँ के 2 लाइंस, पहले मैं ऐसे डैश बना दूँगी एंड देन विद द हेल्प ऑफ द स्केल आई विल ड्रॉ दिस बार। ओके, पहले लाइट ही ड्रॉ करना है आपको। वाई, कभी मिस्टेक हो गई तो रब करने में थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए इफ़ यू फाइंड कि ये करेक्ट है तो फिर उसको हम डार्क कर सकते हैं। अभी ये 40 हो गया। यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं हमारे 6 स्टैंडर्ड के लिए, 26 बॉयज़ है। तो अभी 26 हमको काउंट करना है। ये हमारा 25 है, उसके आगे की 2 लाइंस 1, 2, ये हमारा 26, ये क्या है बॉयज़ है। तो बॉयज़ के लिए मैंने ऐसे मार्किंग रिमेंबर, जो मार्किंग किया है बॉयज़ के लिए तो बॉयज़ के लिए करना है, गर्ल्स के इसमें वो मार्किंग नहीं आएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाए। तो ये बॉयज़ का मार्किंग है, ये ऊपर के क्या हो गए, गर्ल्स हो गए। नाउ थर्ड 7 स्टैंडर्ड। 7 स्टैंडर्ड में क्या है, टोटल इज़ 35। अभी 35 लेना है हमको, 30 और ये 35, यहाँ पे बार बनाएंगे, जॉइन इट टू द, यहाँ पे जॉइन करो, ये भी यहाँ पे जॉइन करो। ओके, 35 में से बॉयज़ कितने हैं 21, सो मुझे 21 पे मार्किंग करना है। ये 20 है, 20 के ऊपर की 2 लाइंस तो हो गया 21, ये है बॉयज़। ओके, नेक्स्ट इज 8 स्टैंडर्ड। 8 स्टैंडर्ड टोटल इज़ 45। टोटल कितना है 8 स्टैंडर्ड का 45, ये 45, अभी उसमें बॉयज़ कितने हैं 45 में, 25 बॉयज़ आते हैं, तो ये इजी है 25 पे, और फिर डैश। ओके, तो हमारा सब हो गया पूरा। चारों स्टैंडर्ड्स के हमने बॉयज़ के मार्किंग किए, पहले हमने टोटल किया मार्किंग, फिर बॉयज़ का किया, तो गर्ल्स का ऑटोमेटिकली हो गया अपना। सो आई होप यू हैव फॉलोड। ये ग्राफ कैसे करना है वो